we will discuss electrophilic substitution reactions of haloarenes. So electrophilic substitution. First, we must have the concept of electrophile. Electrophile is actually electrophile is actually electron seeking species or electron loving species. So it attacks this electrophile attacks at the electron rich center of any molecule such as benzene. So we can uh, write this electrophile like this, E positive. So this means it is deficient in electrons. So it always attacks at the electron rich center of any molecule because it is electron loving or electron seeking. ये electron seeking होता है. So these haloarenes जो हमारे पास haloarenes है, these haloarenes they undergo electrophilic substitution reactions because of the electron rich benzene ring. उनमें जो electron rich benzene ring होती है, because of that reason they undergo electrophilic substitution reactions. और इनमें जो halogen होता है, halogen, if I take this is chlorobenzene. ये chlorobenzene है, for example. यहाँ पर ये halogen है, this halogen is no doubt it is slightly deactivating होता है because of minus I effect, minus inductive effect. Because of this minus I effect, this is slightly deactivating. It deactivates the benzene ring for electrophilic substitution reaction as compared to benzene, because this halogen has a tendency to withdraw electrons from the benzene. Therefore, अगर हम करेंगे these haloarenes को हम करेंगे compare with the arenes, that means benzene, so we require more drastic conditions here. यहाँ पर हमें थोड़ा drastic condition चाहिए in haloarenes में as compared to benzene. So this chlorine, this halogen is actually ortho-para-directing होता है, ortho-para-directing होता है. What that means? That means that it directs this halogen directs the incoming electrophile to go at ortho or para position. You need to get attached at ortho and para position. अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस जो होता है ना, जो हेलोजन का जो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है, we can understand this. For understanding this, we have to consider resonating structures of हेलोबेंजीन. हमें हेलोबेंजीन का resonating structures को कंसिडर करना है, तब हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द हेलोजन को. फॉर एग्जांपल ऐसे, so I will take the example of chlorobenzene. This chlorobenzene, हम हेलोबेंजीन लेंगे. So इसका जो इस पे जो लोन पेयर्स होते हैं, ऐसे इसका रेजोनेंस बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे. So we'll get this resonating structure. This is Cl. यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे. One more will get like this. ये आएगा यहाँ पर, will get so यहाँ बनेगी नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे ऐसे ही. So we will get one more resonating structure like this. ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा. यहाँ आएगा ये. So अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 and this is 4th structure, हम यहाँ पर देखेंगे. So
what we observe here from these resonance structure is that the electron density, जो electron density है, increases more at ortho and para position. So this is ortho position. Ortho position, this para position, this ortho position. So electron density increases more at ortho and para positions. Then at meta position, ये वाली meta position है. Meta position पे electron density यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होती ड्यू टू रेजोनेंस. सो ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस. दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन. मेटा पोजीशन के बजाय वहां पर ज्यादा होती है ये. बिकॉज ऑफ दैट रीजन इलेक्ट्रोफाइल विल गेट अटैच्ड at ortho and it will prefer to attack at ortho and para positions because of high electron density at those positions. So now we'll take the first example, halogenation. Halogenation होता है इनका. They undergo halogenation. Halogenation का मतलब है reaction with halogen. Such as chlorine in presence of FeCl3, यानी अनहाइड्रस FeCl3. ये कैटालाइज करता है इसको, अनहाइड्रस FeCl3. So where we write like this. This is chlorobenzene. ये chlorine. I will get FeCl3. ये कैटलिस्ट है अनहाइड्रस FeCl3. So यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन, इसको ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा यहाँ पर. So that will get attached with the ortho and para position. So we'll get this product. एक बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट प्लस दूसरा बनेगा पैरा प्रोडक्ट. Cl यहाँ पर Cl प्लस बनेगा HCl. अब ये बनेगा माइनर. ये डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है. ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. ये बनेगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट. सो मेजर बनेगा पैरा, माइनर बनेगा ऑर्थो. ये हो गया 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. सो दिस इज हेलोजिनेशन. ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. सो वन मोर we'll do nitration. This is nitration. Nitration है reaction with nitric acid. Nitric acid in presence of H2SO4 concentrated. In presence of H2SO4. So we'll get like this. We'll write the reaction like this. This is chlorobenzene. ये chlorobenzene है. ये HNO3 है. यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो NO2 है. ये यहाँ पर ये होगा इलेक्ट्रोफाइल. So in presence of H2SO4 concentrated. So we'll get mixture of products here. We'll get ये नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यानी 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्लस एक और बनेगा. दिस इज NO2 प्लस यहाँ बनेगा HCl, सॉरी H2O. H2O बनेगा वाटर. सो दिस इज ये बनेगा यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट होगा. ये होगा मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू स्टीरिक रेजोनेंस. सो दिस इज नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है. ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है. सो दिस वाज नाइट्रेशन. नाउ वन मोर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन shown by these haloarenes, that is sulfonation. सल्फोनेशन मतलब है रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड. सो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, सो दिस इज क्लोरोबेंजीन. हम लेंगे यहां पर, इसको हम ट्रीट करेंगे
विथ H2SO4, यहाँ से जो निकलेगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये कंसंट्रेट हम लेंगे यहाँ पर, सो विल गेट दिस कंपाउंड। एक तो बनेगा SO3H, सो यहाँ पर SO3H बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है SO3H, ये सल्फोनिक ग्रुप है। ये एक और प्रोडक्ट बनेगा, मिक्सचर बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट्स का, आर्थो एंड पैरा, बिकॉज वी नो दैट these positions have more electron density. These are electronic centers, as we have already observed that in resonating structures. So this is SO3H plus HOH, ये water. So this is ये आर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ये आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो दिस इज पैराक्लोरो, ये पैराक्लोरो है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड है। दिस इज ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो दिस वाज सल्फोनेशन। Now one more will add, that is Friedel-Crafts. That is Friedel-Crafts. Friedel-Crafts reaction. What that means is, here haloarenes are treated with, reacted with alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये फ्रिडल कैटलिस्ट में बोलते हैं इसको, anhydrous एल्यूमिनियम क्लोराइड का बोलते हैं फ्रिडल कैटलिस्ट। सो वी विल टेक द एग्जांपल हियर, it is chlorobenzene, this is alkyl halide, further this is methyl chloride, ये मिथाइल क्लोराइड है, या क्लोरोमीथेन है ये, दिस इज अल्काइल मिथाइल क्लोराइड, ये मिथाइल क्लोराइड है। सो विल गेट, दिस इज अनहाइड्रस AlCl3, so we'll get this compound, this is chlorobenzene, this is CH3, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बनेगा CH3। एक और प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर Cl, यहाँ पर बनेगा CH3 प्लस यहाँ पर बनेगा HCl। सो दिस इज, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये पैरा प्रोडक्ट है। दिस इज ऑर्थो, ये ऑर्थोक्लोरोटोलिन है, दिस इज पैराक्लोरोटोलिन, ऑर्थोक्लोरोटोलिन, ये पैराक्लोरोटोलिन। सो ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पर एक और रिएक्शन है फ्रिडल-क्राफ्ट्स में, हम करते हैं यहाँ पर एसाइलेशन, यानी वी ट्रीट दिस इज, ये पहला था, दिस इज अल्काइलेशन बोलते हैं इसको, फ्रिडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। अब हमारे पास दूसरा है एसाइलेशन, यानी फ्रिडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं एसाइल ग्रुप लाइक दिस, यहाँ करते हैं हम ट्रीट रिएक्टेड विथ अल्काइल हाइड के बजाय हम यहां पर लेते हैं एसिड क्लोराइड, मसलन CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये एसिड क्लोराइड है, या हम इसको पढ़ते हैं, दिस इज एस्टाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड। सो कॉमनली हम पढ़ते हैं इसको, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड,
सो बिल्कुल कंडीशन सेम है, अनहाइड्रस AlCl3। सो यहाँ पर ये ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, ये वाला ग्रुप एसाइल ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा लाइक दिस। ये Cl है, दिस इज C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस, ऐसे बनेगा दूसरा प्रोडक्ट पैरा वाला C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस HCl। सो दिस इज द, ये होगा माइनर प्रोडक्ट यहाँ पर, ये होगा मेजर। ये आर्थो प्रोडक्ट है, आर्थो प्रोडक्ट, ये आर्थोक्लोरो एस्टोफिनोन पढ़ते हैं इसको, दिस इज पैराक्लोरो एस्टोफिनोन। सो दिस इज माइनर, ये होगा मेजर। सो दीज आर फ्रिल रिएक्शंस। द फर्स्ट वाज अल्काइलेशन, द सेकंड इज एसाइलेशन, ये एसाइलेशन है, सेकंड वाली थी एसाइलेशन। यहाँ पर हम करते हैं इंट्रोड्यूस, एसाइल ग्रुप करते हैं हम इंट्रोड्यूस यहाँ पर। सो नाउ इसका जो यहाँ पर जो केमिकल, यहाँ पर जो मैकेनिज्म था इस रिएक्शन का, मैकेनिज्म, इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म, जो इलेक्ट्रोलिटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म क्या था, सिंपली हम इसका मैकेनिज्म हम कर सकते हैं डिस्कस। यहाँ पर जो अटैकिंग स्पीशीज है, हम लिखे यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर इसका मैकेनिज्म सिंपल है। यहाँ पर ये दिस इज फॉर एग्जांपल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल है ये, दिस इज फॉर एग्जांपल आई विल राइट लाइक दिस इज सिंपल बेंजीन रिंग हम मानते हैं यहाँ पर, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन पे कैसे इसको ये अटैक करता है ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग को। सो आई विल राइट लाइक दिस। यहाँ पर जो ये पायलेट्रॉन है ये यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उससे क्या होता है, यहाँ पर बनता है एक, यहाँ पर बनती है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बनती है पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव सेंटर है, ये पॉजिटिव सेंटर, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। सो बाकी ऐसे रहता है। फिर यहाँ पर जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वहां पर ये अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो है उसको अटैक करेगा। सो वी विल गेट दिस कंपाउंड, हमें मिलेगा लाइक दिस। ये हमें मिला यहाँ पर, और एक मिलेगा हमें H तो यहाँ पर है, H तो यहाँ पर ही है। सो बाकी रहेगा ऐसे, ये स्लो है। सो ये एक्चुअली इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर। ये द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज एक्चुअली, ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। So it is believed that the mechanism of this reaction is, जो इसका mechanism है, the reaction जो है ये reaction, that is bimolecular, that means involving the formation of intermediate. So this is intermediate. So intermediate formation is slow step. अब जो फिर ये unstable होता है intermediate, it breaks. So ये break होगा, ये fast step है, ये fast step है। So ऐसे आएगा यहाँ पर ये, so we'll get this compound। यहाँ पर ये H आएगा, ये H यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर। सो H will leave as H positive, so we'll get E, यहाँ पर बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गई तो यहाँ पर आ गया। सो प्लस यहाँ पर निकल गया इलेक्ट्रोफाइल, H पॉजिटिव निकल गया यहाँ पर बाहर। सो दिस इज एक्चुअली, ये बाइमॉलिक्यूलर माना जाता है, ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो वन इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस द अदर इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इट इज बिलीव्ड दैट इट इज अ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है, इंटरमीडिएट। सो द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज स्लो स्टेप,
एंड वो इंटरमीडिएट फिर ब्रेक होता है, वहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलता है एज H पॉजिटिव, सो दैट इज अ फर्स्ट स्टेप. सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पर जो स्लो स्टेप है, इट इज एक्चुअली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. So haloarenes undergo electrophilic substitution reaction because of electron rich benzene ring. That means one electrophile replaces the other electrophile. Okay.